So, a very good afternoon to all my dear students. We will start with today's session. As you all know, आज का आपका जो lecture है, 3 lectures we are already done. The first lecture was who exactly is an entrepreneur. I had given you lots of examples. After that, students, we had basically studied the concept of entrepreneurship, उसका importance, कितना वो important था, right? This course again I will tell. You know, students, by the end of this week, I will be sharing PPT with you all also. Okay, so मैं ये जो PPTs बना रही हूँ आपको मिल जाएगा आपके ग्रुप पे. So that is what I am trying to tell you, students. So in exam also, like you know, certificate आपको मिलेगा. उसके लिए you see, you will be supposed to give exam. It will be online only. Google form होगा. So उसमें I will be putting up photos, some photos like जो मैं discussions, you all know students, recording and all मैं करती हूँ आपके lectures का, right? So मैं आपको सिर्फ photos, I will tag the person, you will have to tell me ये entrepreneur का नाम क्या है. Okay? Okay, fine. So आप देखते हो students, see, let us look at your left side. Today we have to study a very interesting concept known as intrapreneur. ओके, एंटरप्रेन्योरशिप का मीनिंग आप सब लोगों को पता ही है. देखो क्या लिखा है, इट इज एन एक्टिविटी डन बाय एंटरप्रेन्योर. आप अगर देखते हो, रिवॉर्ड्स गो टू द एंटरप्रेन्योर. मीन सी स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल इफ देयर बिजनेस पर्सन, ओके, इफ वो एक एंटरप्रेन्योर है, फॉर एग्जांपल आई हैड गिवन यू फाल्गुनी नैयर ऑफ नायका. और अगर आप और एग्जांपल अगर लेते हो स्टूडेंट्स, यू नो, भावेश अग्रवाल, ओके, ये सब ओला है, माई डेंटिस्ट, सो मेनी एग्जाम्पल्स वे देयर. सो इफ यू सी, तो रिवॉर्ड्स जो है जेफ बीजोस का, आई टोल्ड यू ऑफ अमेजोन, दे देमसेल्व्स आर एंजॉयिंग. yes, and risk भी खुद ले रहा है. मतलब if we are telling ना, it's a one man show basically. Okay, that is what is basically told over here. On the other hand, if you look at intrapreneur, try to understand students, intrapreneur का मीनिंग क्या हो जाता है. सी, आगे के वर्ड में ही डिफरेंस है स्टूडेंट्स. इफ यू सी, यू नो, एंटरप्रेन्योर इज वन एंड इंट्राप्रेन्योर इज वन. ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या लिखा हुआ है. Entrepreneurial activity undertaken by employees and managers. Try to understand, student, who exactly an intrapreneur is. You know, student, many a times we get confused कि मैम intrapreneur and entrepreneur same ही है. ऐसा नहीं होता है students. If I will tell you, intrapreneur starting with the word I, he basically is a person, okay, who is an employee of the organization. आपको समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? मैंने आपको ये जो एग्जांपल दिए जेफ बीजोस के एंड ऑल, वो सब जो थे, दे आर ओनर्स. वो खुद दे, फॉर एग्जांपल जेफ बीजोस है, ही ओन्स द कंपनी अमेजोन. ओके, बट इंट्राप्रेन्योर जो है वो कंपनी का एम्प्लॉय है. फॉर एग्जांपल इफ आई विल टेल, इट कुड बी द सीईओ, और फॉर एग्जांपल वाइस प्रेसिडेंट. वो उसका खुद का बिजनेस नहीं है, वो कंपनी के लिए ही काम कर रहा है. Okay, so that is what is written here. Entrepreneurial activity taken by employees and managers. You know, students, here I will give you an example. For those of you who don't know, I have worked in Godrej. So मैं Godrej का ही example आप लोगों को दूंगी. Fine. So what basically happened in Godrej when I was working there, students? Have you heard of a product known as Godrej Chotu Cool? आपने नाम सुना है Godrej Chotu Cool का? Yes or no? Let me type it in the chat box. Have you heard of this product? किसी ने कहीं सुना हो, देखा हो? Anyone? Okay, see, मैं वो chat box में भी I have typed the word Godrej Chotu Cool. Let me tell you exactly what it is. See, नाम से ही आपको थोड़ा अंदाजा आ गया होगा स्टूडेंट्स. छोटू कूल मीन्स बेसिकली व्हाट? छोटू मीन्स समथिंग दैट इज स्मॉल. कूल का मीनिंग हो जाता है ठंडा. ओके, सो अगर मैं गोदरेज छोटू कूल की आपको बात करूं, इट इज नथिंग बट अ मिनी रेफ्रिजरेटर. एक छोटा रेफ्रिजरेटर है. दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू. सो
बेसिक स्टूडेंट्स, नाउ नॉर्मली आई एम आस्किंग यू अ सिंपल क्वेश्चन. आप लोग मुझे बताओ, अगर आप एक फ्रिज खरीदने जाते हो, एनीवेयर दैट यू आर गोइंग, कैन यू टेल मी नॉर्मल उसका प्राइस क्या होगा? अगर आप फ्रिज खरीदने जा रहे हो, नॉर्मल प्राइस क्या होगा, अप्रोक्सीमेट बताओ. स्टूडेंट्स हु हैव अटेंडेड माय प्रीवियस लेक्चर्स दे नो बेबी, अगर मैंने पढ़ा है तो. एब्सोल्युटली राइट अमन, ज्योति, 15,000 मिनिमम में आपको इतने में मिलेगा. व्हाट डू यू फील? आप लोगों को अगर नहीं पता है स्टूडेंट्स, यू नो इंडिया का मेजोरिटी पॉपुलेशन स्टेज इन द विलेजेस. सो व्हाट डू यू फील, कैन दे अफोर्ड? वो लोग अफोर्ड कर सकते हैं ऐसे प्रोडक्ट्स बाय करना इतना महंगा? इफ आई वुड से no students, they can't. Okay, so that is why Godrej came up with an idea. उन्होंने क्या सोचा कि वो लोग ऐसा प्रोडक्ट क्यों ना बनाए. यू नो इट्स लाइक अ मिनी रेफ्रिजरेटर. अगर मैं आप लोगों को बताऊं स्टूडेंट्स, व्हेन वी गो आउट स्टेशन, ओके, हम बाहर गांव जाते हैं, हम हमारे हाथ में कैसा एक कैरी बैग रखते हैं, मतलब यू नो अ बैग जिसमें हम सब सामान भर के लेके जाते हैं. तो सेम वे गोदरेज छोटू कूल, इफ आई विल टेल यू, इट्स लाइक अ मिनी बॉक्स होता है ना, जितनी साइज का उतना छोटा रेफ्रिजरेटर है. एंड स्टूडेंट्स लेट मी टेल यू, इफ यू नो अबाउट इट, गोदरेज आई मीन ये जो विलेज एरिया होते हैं, वहाँ पे देर इज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम ऑफ पावर शेडिंग ऑल्सो. मीन्स वॉट, लाइट चली जाती है वहाँ पे, इलेक्ट्रिसिटी स्टेबल नहीं होती है. इफ यू सी हमारे घर पे एंड ऑल, यू नो अगर लाइट जितनी बार जाती है, चांसेस हो जाते हैं हमारे प्रोडक्ट बिगड़ जाता है. yes or no? Okay, that is why it is also a portable refrigerator. Portable means हम आसानी से इधर उधर घुमा सकते हैं. यू नो स्टूडेंट्स, एंड में इफ वी हैव टाइम आई विल शो यू वीडियो ऑन गोदरेज छोटू कूल ऑल्सो. ठीक है, इतना छोटी सी साइज का रेफ्रिजरेटर है. इफ आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल, यू नो हमारा जो कंप्यूटर होता है ना, हमारी कंप्यूटर लैब में है, ऑलमोस्ट एक कंप्यूटर की साइज का ही वो फ्रिज है. लाइक स्टूडेंट्स, नाउ अगर आप विलेज रूरल इंडिया का देखो, नॉर्मली व्हाट हैपेंस इज, यू नो वो लोग हमारे जैसे सब सामान भर के नहीं रखते उसमें. व्हाट दे नॉर्मली डू बेसिकली इज, यू नो दे विल उसमें छोटी मोटी चीजें स्टोर करेंगे. लाइक फॉर एग्जाम्पल छाछ है, पानी, ठंडा पानी रखना है, समथिंग लाइक दैट. ओके, दैट इज व्हाट. तो इंट्राप्रेन्योर्स मीन्स एज आई वाज टेलिंग, तो गोदरेज छोटू कूल का जो फर्स्ट एग्जाम्पल आई गिव यू, ये आइडिया तो जो था गोदरेज के एक एम्प्लॉय लेके आया था. कैन यू बिलीव इट स्टूडेंट्स? एंड ये जो प्रोडक्ट था, इट वॉज एन इंस्टेंट हिट. अगर मैं आप लोगों को बताऊं स्टूडेंट्स, इन जनरल मार्केट में कौन से प्रोडक्ट्स चलते हैं, अगर मैं आप लोगों को बताऊं, कस्टमर इज द की. इन जनरल इफ वी नो अबाउट दिस, तो हमें काफी यू नो आगे जा सकते हैं. एज अ कंपनी वी कैन गो अहेड. ओके, तो उसमें वही लिखा है कि यू नो जो एंट्राप्रेन्योर, मतलब इन अ वे एंट्रप्रेन्योर प्लस एम्प्लॉय, दैट इज व्हाट इज रिटन. मतलब कंपनी में ऐसे कुछ हम बोलते हैं ना, सितारे होते हैं, स्टार एम्प्लॉयज होते हैं, हु यू नो बेनिफिट द ऑर्गेनाइजेशन. ओके, इसमें अगर आप देखते हो स्टूडेंट्स, रिवॉर्ड्स मोस्टली गो टू द कंपनी. ये चीज है इसमें स्टूडेंट्स. सी, रिवॉर्ड्स जो है, फॉर एग्जाम्पल अगर एंट्रप्रेन्योर है, ओके, तो आप इस केस में अगर देखते हो, तो जो रिवॉर्ड्स होते हैं वो खुद एंजॉय कर रहा है. इस केस में कंपनी को ज्यादा बेनिफिट होता है, इफ आई विल टेल यू. ओके, नाउ यू विल बी थिंकिंग कि मैम ऐसा क्यों? सी स्टूडेंट्स, बिकॉज इसमें जो रिस्क फैक्टर है, दैट इज ऑल्सो टेकन बाय द कंपनी. रिस्क मीन्स मैंने आप लोगों को कहा था, कंपनी का पैसा लगा हुआ होता है, एनी बिजनेस दैट वी वांट टू डू. ओके, दैट इज व्हाट इज टोल्ड ओवर हियर, इस कंपनी को रिस्क लेने. बिकॉज सी, नाउ यू विल बी थिंकिंग, तो फिर मैम कोई अपना आइडिया क्यों कंपनी के साथ शेयर करेगा, अगर कंपनी सब प्रॉफिट एंड ऑल एंजॉय कर रही है? द सिंपल रीजन बीइंग स्टूडेंट्स, यू नो बिकॉज क्या इससे फायदा होता है कि यू नो ऐसा नहीं है कि कंपनी उसको कुछ दे नहीं रही है, देर इज अ सर्टन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जो उसको जाता है. आसान सी बात है ना स्टूडेंट्स, अगर कोई हमारे लिए काम कर रहा है, इफ दे आर बेनिफिटिंग अस, तो उसको कुछ रिवॉर्ड तो मिलना चाहिए. तो ऐसा नहीं है कि उसे कुछ नहीं मिलेगा, दे विल गेट पर्क्स. यू नो स्टूडेंट्स, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ.
every organization, they have an R&D cell, means what, research and development cell. Okay, अगर आप उसमें देखते हो students, what normally happens is, R&D सेल की बात करूँ, दे ऑलवेज मेक श्योर कि साइंटिस्ट जो उसमें काम करते हैं, मेनी कंपनीज दे कॉल देम एज इनोवेटर्स. ओके, तो वो लोग जो है कॉन्स्टेंटली बीइंग रिवॉर्डेड. ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया है हु एग्जैक्टली इंटरप्रेन्योर्स आर. इंट्राप्रेन्योर्स वो एम्प्लॉयज ही है कंपनी के, बट विद इन योर ओन कंपनी दे ब्रिंग आउट चेंज इन अ पॉजिटिव वे. मैं आप लोगों को अभी बिफोर मूविंग फर्दर, मैं आप लोगों को एक फोटो दिखा रही हूँ टू शो यू हु एग्जैक्टली एन इंट्राप्रेन्योर इज. लेट मी सी इफ यू कैन गेस. First one, I am keeping it very easy. So let me see in the chat box. See, आपका screen देखना students. I am sharing it with you. First of all, tell me, can you identify who this person is? Come on, quickly tell me who this person is. कोई बता सकता है? Anyone knows the name? I am waiting for your responses. Come on, try करो. You can tell students. Okay, let me see your responses क्या आए हैं. Very good. Shekhar, Jyoti, they have given me the right answer. Aman, absolutely right. Sundar Pichai is the right answer. चलो, नाम तो आप लोगों ने बता ही दिया. Yes, I was about to ask. प्रतीक ने आंसर कर दिया. He is associated with which company? Can you tell me with which organization is he associated with? कोई बता सकता है? Come on, with which company he is associated with? Let me see your responses. Very good, students. Google is the right answer. Absolutely. Now, see, students, try to understand. This is what I was trying to telling you. He is not the owner of Google. वो Google का owner नहीं है. He is an employee. अगर इसका मैं थोड़ा rough background दूँ students, why he is basically famous, because he एक Indian है. He did his studies from Indian Institute of Management. Okay, and Google को if you see students, आज इतना success अगर मिला है, that is because of this person you are seeing on the screen. Sundar Pichai. Okay, he has brought up so many new ideas in a more positive way. हम बोलते हैं ना आज के टाइम में, फॉर एग्जाम्पल आप लोग ही बताओ स्टूडेंट्स, आपको कोई भी चीज के बारे में सर्च करना हो, what is the first thing that you will always do? Google पे चले जाओगे. Yes or no? That is what is basically told over here. Okay, आप at the same time if you see Yahoo का example, there was one lady Marissa Mayer. She was basically looking after Yahoo. एक टाइम Yahoo का भी नाम था in the market. But again, अगर मैं आप लोगों को बताऊँ, they were not able to cope up. कोप अप मीन्स वो लोग टिक नहीं पाए जमाने के हिसाब से. हम बोलते हैं ना, चेंज इज अ पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट. हमें कॉन्स्टेंटली चेंज करना है. ही वॉज द वन हु इन अ वे रेवोल्यूशनलाइज गूगल. ओके, ठीक है. तो आई होप अभी आप लोगों को समझ में आ रहा है हु इज एन इंटरप्रेन्योर. सो वी विल नाउ मूव इन डिटेल इन द कंसेप्ट. ओके, अभी हम डिटेल में जाएंगे. सो लेट मी स्टार्ट शेयरिंग द स्क्रीन. So, see students, abhi I am sharing the next PPT with you. Yeah, I hope it is visible to you students, this PPT. एंड में जैसे कि मैंने कहा है, सब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी. सी, एंटरप्रेन्योर वर्सेस इंट्राप्रेन्योर. ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस स्टूडेंट्स, क्या लिखा हुआ है. सी, सेम थिंग ही है मोर और लेस, बट कुछ डिफरेंस है. फॉर एग्जाम्पल, इंडिपेंडेंस.
See, independence का meaning you all know, freedom. Okay, so for example if I will tell you, एक entrepreneur, see first we will read क्या लिखा है. In current business literature there is no shortage of info. ठीक है, that's not important. या एक एंट्रप्रेन्योर होता है, समवन लाइक ई से स्टार्ट हो रहा है, होली इंडिपेंडेंट क्रिएशन, मतलब वो सब होता है, उसकी खुद की आइडिया होती है, पैसा उसने खुद इन्वेस्ट किया होता है. फॉर एग्जाम्पल समवन लाइक अमेजोन. ओके, अमेजोन स्टूडेंट्स, इफ यू डोंट नो, व्हेन ही क्रिएटेड अमेजोन, जब उसने खुद की कंपनी बनाई थी, ही लेफ्ट हिज प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन, उसने वहां पे रेजिग्नेशन दे दिया था. ओके, सो आई मीन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, सी स्टूडेंट्स, इवन आप अगर देखो, वो भी दैट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ रिस्क. इफ यू सी, it's not easy, not everyone can make this decision. Let me tell you, you know, मैं जॉब खोल के I will open up my new company, it requires a lot of daring. ओके, आगे अगर आप देखते हो स्टूडेंट्स, टाइम कंस्ट्रेंट्स, एंड इफ यू सी इंट्राप्रेन्योर मीन्स वो अपनी कंपनी में ही नए आइडियाज लेके आता है. एज आई शेयर यू द एग्जांपल ऑफ गोदरेज छोटू कूल, उसके बाद मैंने फॉर एग्जांपल शेयर किया दिस सुंदर पिचई, और एक एग्जांपल भी आ रहा है आगे. ओके, टाइम कंस्ट्रेंट्स, कंसिडरेबल प्रेशर टू डेमोन्स्ट्रेट सक्सेस मीन्स, अगर आप देखते हो स्टूडेंट्स, उसका खुद का पैसा लगा हुआ है एंट्रप्रेन्योर का, तो उसमें वो प्रेशर बहुत होता है कि यू नो मुझे सक्सेस तुरंत मिले, राइट. वेरएज अगर आप देखो स्टूडेंट्स, एक एम्प्लॉय है ऑर्गेनाइजेशन में, यू ऑल नो एम्प्लॉय जो होता है दे आर ऑन सैलरी, यस और नो. तो जब भी कोई सैलरी पे होता है, उन्हें ऐसा कुछ टेंशन नहीं होता है स्टूडेंट्स कि यू नो मुझे अचीव करना ही है, बिकॉज दे नो, सी इट्स लाइक दैट, वो लोग अगर कुछ इनोवेशन करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट अगर हो रहा है, तो दे विल गेट रिवॉर्ड, अदरवाइज उनकी सैलरी तो कंटिन्यूड ही है, राइट. या एंट्रप्रेन्योर, ही और शी टेक्स अ वेरी हाई लेवल ऑफ रिस्क. ये आपको देख के पता ही चल गया स्टूडेंट्स, इंट्राप्रेन्योर में वो कम है, बिकॉज इन अ वे उसका कुछ नुकसान नहीं है, देर इज नथिंग दैट ही और शी हैज टू लूज. ओके, सेम इफ आई विल टेल यू स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहे हैं स्टूडेंट्स. एनीवन इज हैविंग एनी डाउट? किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा है, वांट मी टू रिपीट, देन प्लीज आस्क मी. एनीवन, किसी को कुछ नहीं समझ में आया है, वांट मी रिपीट, प्लीज आस्क मी. सी, आगे अगर आप देखो एडेड वैल्यू, इसका क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स? सी, एक एंटरप्रेन्योर होता है ना, लाइक हम बोलते हैं ना टिपिकली अ बिजनेस पर्सन, अ बिजनेस टाइकून, जिसने सब स्टार्ट किया है. अगर आप देखते हो स्टूडेंट्स, मोस्टली यू नो डेमोन्स्ट्रेट एडेड वैल्यू टू स्टेक होल्डर्स. इसका क्या मीनिंग है? आप अगर देखो, फॉर एग्जाम्पल, यू नो आई रिमेम्बर फेसबुक, जब आई थी कंपनी, there were many investors, if you have heard of the term venture capitalists, they were interested in you know having a share in Facebook. This basically means what students, having a share in Facebook का मीनिंग क्या है? वो लोग को अपने पैसे जो थे फेसबुक में लगाने थे. Now if I will ask you why, the main reason being you know because कल जाके see students, investors if they are investing in a company, what they expect, वो लोग की कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, उन्हें जहाँ लगता है कि ये कंपनी का फ्यूचर है, तो ही वो लोग इन्वेस्ट करेंगे. ठीक है, दैट इज व्हाट इज बेसिकली टोल्ड ओवर हियर. तो एडेड वैल्यू, दैट मीन्स व्हाट, अगर एक एंटरप्रेन्योर है, ही वांट समवन कि यू नो जो मेरी कंपनी में पैसे लगाए, दैट इज व्हाट इज टोल्ड. तो स्टेक होल्डर्स को उसे कन्विंस करना पड़ता है. एंड अगर आप देखो फैमिली बिजनेस मीन्स आइडियली यू नो, इफ आई विल टेल, कंपनी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग, नॉट अ सिंगल पर्सन. आप लोग देखो स्टूडेंट्स, बेस्ट और एक एग्जांपल दे रही हूँ. इफ यू नो करंटली कोरोना वायरस चल रहा है, एंड फाइजर कंपनी की वैक्सीन आई है मार्केट में. आइडियली ऑफिशियली फाइजर वाज द फर्स्ट कंपनी टू ब्रिंग अप अ वैक्सीन. ओके, तो आप देखो इसमें कोई पर्सन का नाम नहीं आया कि ये साइंटिस्ट ने ये ढूंढा. आफ्टर ऑल द क्रेडिट वेंट टू फाइजर, राइट. तो वो जो भी टीम है, साइंटिस्ट है, जिन्होंने वो कोविड की वैक्सीन ढूंढी होंगी, उन्हें डेफिनेटली रिवॉर्ड तो मिला ही होगा, राइट. दैट इज व्हाट इज टोल्ड. तो और एक एग्जांपल आ गया,
रिसोर्सेज, द एंटरप्रेन्योर मस्ट फाइंड ऑल नेसेसरी रिसोर्सेज। मतलब अगर मैं आप लोगों को बताऊं, पूरा कंपनी ए टू जेड अगर मैनेज करना पड़ता है तो वो एंटरप्रेन्योर को पहले तो उसको फिनेंस मैनेज करो, मीन्स पैसे इकट्ठा करो बिजनेस के लिए। कोई एम्प्लॉय को रख रहे हो तो उसको सैलरी देनी पड़ती है, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम अगर आप इंट्राप्रेन्योर में देखो, what basically happens is core business resources, मतलब सी इंट्राप्रेन्योर है स्टूडेंट्स, कल अगर उसे बोल रहा है कि मुझे ये रिसर्च करने के लिए इतने पैसे चाहिए फॉर एग्जाम्पल, द कंपनी विल बी रेडी टू पे हिम दैट अमाउंट, ओके। वेरएज अगर वो बोल रहा है कि मुझे एक स्टाफ चाहिए, आई वांट अ टीम टू वर्क, कंपनी है ना, दे विल गिव वॉट एवर यू आर आस्किंग फॉर, ओके। डिसीजन मेकिंग, this is important students. See, entrepreneur is involved in all relevant strategic decision making means long term। मैंने आप लोगों को कहा है एंटरप्रेन्योर जो अकेला बिजनेस संभाल रहा है उसके हाथ में पूरा पावर होता है। whereas if you see intrapreneur, okay, इसमें what basically happens is he himself, not just him, उसके हाथ में होता है decision making, but try to understand ultimately वो owner नहीं है, it is some company for whom he is working, right? That is what is told over here. So that is what I hope in general आप लोगों को समझ में आया है। नेक्स्ट और एक पीपीटी है, आई विल शेयर दैट विथ यू। anyone is having any doubt, the concept is very very simple। ये concepts आप लोग टेक्स्ट बुक में if you have a subject पढ़ते हो मिल जाएगा। examples that I am sharing students वो आप लोगों को नहीं मिलेगा। now I wanted to share one more example with you students। you have to guess and tell me who this lady is। फोटो दिख रहा है आपके स्क्रीन पे, you will have to tell me who this lady is। come on, आप लोग मुझे बताओ who this lady is according to you। try to guess, any idea। मैं आपको एक हिंट दे रही हूँ। No, she is not Kiran Bedi students, no। I will tell you, she is associated with a soft drink company, very famous soft drink company। स्टूडेंट्स किरण बेदी जैसा उसका हेयर कट है, ओके, बट किरण बेदी इज मोर इन लाइक वो पुलिस ऑफिसर है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। शी इज, मैं आपको एक एग्जाम, मैंने बोला ना शी इज एसोसिएटेड विद अ सॉफ्ट ड्रिंक फर्म। अच्छा आप लोग मुझे बताओ, ऐसे कौन से दो सॉफ्ट ड्रिंक्स है जो आपने आपकी लाइफ में पिए ही होंगे, सबके घर के सबके फ्रिज में होता ही होगा। कैन एनीवन टेल दो सालों पुरानी कंपनीज जो सॉफ्ट ड्रिंक सेल करती है? एक हिंट दे रही हूँ, इट स्टार्ट्स विथ सी एंड पी। पहले दो कंपनीज का नाम बोलो, सी एंड पी से स्टार्ट होता है। ट्राई टू टेल मी, कम ऑन। बॉयज कैन आंसर इट। आपके घर पे गेस्ट आते हैं, गर्ल्स, किसे हम क्या सर्व करते हैं? हम बोलते हैं ना, कोई बोलता है अभी बहुत गर्म है प्लीज मुझे कुछ ठंडा लेके आओ। अभी समझ जाओ, ठंडा लेके आओ मीन्स दो वेरी फेमस। लेट मी सी व्हाट आंसर्स। स्टूडेंट्स इतना डिफिकल्ट नहीं है, वेरी गुड, आई हैव गॉट द आंसर्स। पार्थ हैज रिटन पेप्सी, एब्सोल्युटली राइट, पेप्सी को प्रतीक ने लिखा, यस। एंड ज्योति हैज रिटन कोको कोला, एब्सोल्युटली राइट। तो ये जो लेडी है, ओके, हर नेम इज इंदिरा नूई। आई विल टाइप हर नेम स्टूडेंट्स इन द चैट बॉक्स, इंदिरा नूई। सी स्टूडेंट्स, ओके, शी इज बेसिकली राइट, प्रतीक ने सही लिखा है, शी इज द सीईओ ऑफ पेप्सिको। स्टूडेंट्स अगर आप देखते हो, आई विल टेल यू व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट हर। students, every, like if you see, अब every company they have award functions। अवार्ड फंक्शंस का मीनिंग क्या होता है? अगर मैंने आप लोग को कहा कंपनी में कुछ ऐसे लोग हैं जो दे आर पुटिंग इन अ लॉट ऑफ एफर्ट, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं,
तो उन्हें कुछ अवार्ड, डेफिनेटली कुछ रिवॉर्ड, बख्शीश तो मिलनी ही चाहिए। यस और नो? So if you look at Indra Nooyi, she is the person basically, you know, she introduced the concept of award system. Pepsi was one of the first companies जो ये system लेके आया था। Now see students, इससे basically क्या होता है is, you know, employees are motivated. I am teaching my students theories of motivation. कई बार क्या होता है, you know, I have told you, money is not the only factor that motivates employees. मनी के अलावा इफ यू सी देयर आर मेनी अदर फैक्टर्स ऑल्सो जो एम्प्लॉयज को मोटिवेट करते हैं। ओके, आई मीन आपके बॉस अगर यू नो चंद लोगों के सामने आपकी तारीफ कर रहे हैं, राइट, दीज आर द थिंग्स। सो इंदिरा नूई, इफ आई टॉक अबाउट यू नो पॉजिटिव, उसने अपने ऑर्गेनाइजेशन में शी इंट्रोड्यूस्ड अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी। हम बोलते हैं ना, चेंज इन अ पॉजिटिव मैनर। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, हाउ इंदिरा नूई brought up change in the organization. Okay, Indra Nooyi is her name. She is associated with PepsiCo. आप अगर आप देखते हो, यू नो टुडे, एज ऑफ टुडे शी इज़ अ यूएस सिटीजन, वो यूएस में रह रही है, हेडक्वार्टर्स जहाँ पे है पेप्सिको का। शी हैज़, इसकी वजह से पेप्सिको को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स हुए हैं, ऑल थैंक्स टू हर। एंड अगेन शी इज़ एन इंडियन, दैट इज़ वाई वी आर कंसिडरिंग, यू नो, ऐसे पॉजिटिव लोगों के एग्जाम्पल लेने चाहिए स्टूडेंट्स। सुंदर पिच्चे इज ऑल्सो एन इंडियन, आज वो गूगल को रूल कर रहा है। इंदिरा नूई, पेप्सिको को, यू शुड बी प्राउड, ऐसे लोग इंडियन है। ठीक है, आप अगर देखो पेप्सिको के इतने सारे यू नो अच्छे, दे हैव ब्रॉट अप मार्केटिंग कैंपेन्स, इतने अच्छे एड कैंपेन्स होते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस लेडी। ओके, सो सी स्टूडेंट्स, ये अगर आप लोगों को समझ में आया तो नाउ आई विल शेयर द लास्ट पीपीटी फॉर द डे। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है, कुछ नहीं समझ में आया है, वांट मी टू रिपीट, प्लीज आस्क मी। सी, दिस इज द लास्ट पीपीटी स्टूडेंट्स। इसमें मैं ना आप लोगों को क्या समझना है स्टूडेंट्स, इंट्राप्रेन्योरशिप इज अ विन विन सिचुएशन। यू नो द मीनिंग ऑफ विन विन सिचुएशन। मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ। चलो फॉर एग्जाम्पल, यू नो आपके घर पे यू हैव एक भाई है और एक बहन है। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल इफ योर मदर इज कमिंग, उसने क्या बोला, वो उसको एक ही चॉकलेट मिली, सो शी गेव द चॉकलेट टू द यंगर ब्रदर। तुम्हें क्या बोल रही है, तुम बड़े हो, तुम समझ जाओ। नो, ऐसा नहीं होता है स्टूडेंट्स। आइडियली एक मॉम क्या करेगी, समवन हु इज फेयर टू हर चिल्ड्रन, दोनों को चॉकलेट आधा आधा करके कर दे देगी। यस और नो? तो उसमें दोनों को खाने को मिल रहा है, तो दिस इज नोन एज विन विन। विन विन मीन्स व्हाट, दोनों पार्टीज का फायदा हो रहा है। तो इफ यू सी स्टूडेंट्स, इंट्राप्रेन्योरशिप इज अ विन विन सिचुएशन। व्हाई? बिकॉज इसमें जो कंपनी है उनको भी फायदा हो रहा है, उसको किसी के पर्सन के इंटेलिजेंस की वजह से आगे आने का मौका, दे आर अर्निंग प्रॉफिट्स। एंड जो पर्सन है जो आइडियाज लेके आ रहा है, ही इज गेटिंग अ प्लेटफॉर्म टू शोकेस हिज टैलेंट। यू नो स्टूडेंट्स, ऐसे जो इंट्राप्रेन्योर्स जो लोग होते हैं, ऐसे आइडियाज लेके आते हैं, लेट मी टेल यू, ये लोग के प्रमोशंस आर वेरी क्विक इन द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, कुछ रिस्क लिए बिना उन्हें रिवॉर्ड मिलता है। ओके, अब देखो क्या लिखा है, अपॉर्चुनिटी टू स्टैंड आउट एंड पेव न्यू एवेन्यूज फॉर रैपिड एडवांसमेंट। मतलब उन्हें अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं आगे बढ़ने की। कई बार हम बोलते हैं ना स्टूडेंट्स, देर आर मेनी पीपल एंटरप्रेन्योर्स में। एंटरप्रेन्योर में अगर आप देखते हो बहुत ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व है, फिनेंशियल रिस्क। नॉट एवरी वन हैज़ द कैपेसिटी, सब लोग बेयर नहीं कर सकते वो रिस्क, करेक्ट? तो दैट इज वाई इंट्राप्रेन्योरशिप इज अ ग्रेट प्लेटफॉर्म, बिकॉज कंपनी आपको उनके रिसोर्सेज दे रहे हैं। ओके, तो उसमें वही लिखा है, अपॉर्चुनिटी टू लिमिट एम्प्लॉय एट्रिशन। सी स्टूडेंट्स, एनीवन नोज द मीनिंग ऑफ अट्रिशन? कैन एनीवन टेल मी क्विकली अट्रिशन क्या है? आई विल टेल यू। एचआर का कंसेप्ट है एट्रिशन। आई विल ऑल्सो टाइप इट इन द चैट बॉक्स। इट बेसिकली मीन्स व्हाट, द पर्सन्स हु लीव एन ऑर्गेनाइजेशन, जो लोग कंपनी छोड़ के चले जाते हैं। सी, आई हैव टाइप्ड इट इन द चैट बॉक्स। तो attrition rate means what, number of people who leave an organization due to any reason,
इट कुड बी एनीथिंग, मुझे और कहीं पे अच्छी जॉब मिल गई, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है। तो दैट इज व्हाट स्टूडेंट्स, अगर कंपनी प्लेटफॉर्म दे रही है एम्प्लॉयज को आगे आने में, तो नो वन विल लीव द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, आप आगे अगर देखते हो, पॉसिबिलिटी टू वर्क अलोंगसाइड कलीग्स, प्रोफेशनल्स हु आर पैशनेट, इसका क्या मीनिंग हो जाता है स्टूडेंट्स? बेसिकली मैंने आप लोगों को कहा कंपनीज में टीम में काम होता है, तो एक इंट्राप्रेन्योर जो होता है, ही गेट्स एन अपॉर्चुनिटी कि दूसरे लोगों के साथ भी इट हैपन। स्टूडेंट्स, आप अगर देखो ये फाइजर का, आई वाज टेलिंग, कोविड का वैक्सीन जो आया है, दैट वाज आल्सो नॉट मेड बाय वन सिंगल पर्सन, वो पूरे साइंटिस्ट की एक टीम होती है। ओके, ऑन द अदर हैंड एंटरप्रेन्योर जो होता है, उसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, एक ही जो पर्सन है बेसिकली उसको नई मार्केट अपॉर्चुनिटी, मार्केट में क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज है, वो ट्रैक करना पड़ता है। इंट्राप्रेन्योरशिप में अगर मैं बताऊँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर शेयर्ड। ओके, नेक्स्ट वन, चांस टू यूटिलाइज एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज, मतलब कंपनी के पास अभी जो रिसोर्सेज है, बी इट इन टर्म्स ऑफ पीपल, टेक्निकल मीन्स जो भी कंप्यूटर रिसोर्सेज है, फिनेंशियल पैसों के रिसोर्सेज है। ओके, कोई भी प्रोजेक्ट डेवलप करने के लिए वो रिसोर्सेज अवेलेबल है। वेरएज इफ यू सी एक एंटरप्रेन्योर है, उसको जैसे कि मैंने कहा सब पैसे खुद लगाने पड़ते हैं, right? Last point, opportunity to better attract investments in light of the host company's support. इसका क्या मीनिंग हो जाता है बेसिकली स्टूडेंट्स, फेलियर के चांस इंट्राप्रेन्योरशिप में कम हो जाते हैं। यू विल आस्क मी कि मैम ऐसा क्यों? द सिंपल रीजन बीइंग स्टूडेंट्स, क्योंकि आप देखो जब बहुत से लोग इन्वॉल्व होते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, गलती होने के चांस कम होते हैं। येस और नो? आई वाज टेलिंग यू अबाउट ब्रेन स्टॉर्मिंग स्टूडेंट्स। ब्रेन स्टॉर्मिंग का मीनिंग क्या हो जाता है? एवरीवन comes up with more and more the number of heads, more the number of ideas. Correct? See, I am typing it in the chat box. Brainstorming means, if I will ask you, for example, students define entrepreneurship or give me example. अब देखो क्लास में अगर 100 स्टूडेंट्स प्रेजेंट है, तो हर 100 अपने हिसाब से कुछ ना कुछ नया एग्जाम्पल देगा, राइट? कई एग्जाम्पल हम दूसरों ही हमें सीखने को मिलता है। ओके, एंड लास्ट, इफ यू सी opportunity to capture new growth, drive internal efficiency and diversity, इसका क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स? एक एंटरप्रेन्योर की अगर मैं बात करूँ, तो ओवरऑल प्रॉफिट की बात करते हैं। डेफिनेटली इसमें एक पर्सन इन्वॉल्व है, तो एज आई हैव टोल्ड, या तो तुम्हें प्रॉफिट हो सकता है या कंप्लीटली लॉस हो सकता है। बट ठीक है, इसमें वो अगेन हो जाता है, प्रॉफिट अगर हो रहा है तो तुम पूरा चॉकलेट एंजॉय कर रहे हो। इंट्राप्रेन्योर में क्या होता है? यू आर बाउंड टू द कंपनी। आप देखो कोविड का वैक्सीन आया, नो वन नोज द नेम ऑफ द पर्सन, एवरीवन नोज कि वो फाइजर वैक्सीन लेके आया। करेक्ट? या, सो हैव यू अंडरस्टूड टुडेज कंसेप्ट स्टूडेंट्स? किसी को कुछ डाउट है, कुछ नहीं समझ में आया है, वांट मी टू रिपीट? प्लीज आस्क मी। एंड स्टूडेंट्स, मैं आपको क्लियरली बोल रही हूँ, नेक्स्ट टाइम से, स्टार्टिंग से एवरीवन हैज टू अटेंड द लेक्चर, बिकॉज अगर ऐसे चलेगा, आई वोंट रिकॉर्ड माय वीडियोस। आई नो मेनी पीपल लेक्चर अटेंड नहीं करते हैं, बट वीडियो देन दे सी ऑन माय यूट्यूब, उसमें आप लोगों को स्टूडेंट्स यू वोंट बी एलिजिबल फॉर सर्टिफिकेट। ओके, सो मेक श्योर यू एक्चुअली स्टार्टिंग अटेंड करो, वीडियो देख के अटेंडेंस नहीं मिलेगा। हाँ, आप जब एग्जाम के लिए प्रिपेयर करोगे दैट इज फाइन, ओके, बट नेक्स्ट टाइम से मेक श्योर यू कम फॉर द लेक्चर। ओके, ठीक है। सो वी आर डन स्टूडेंट्स। ये वीडियो भी आई विल अपलोड इट ऑन एग्जाम्स। आई विल लेट यू नो स्टूडेंट्स, टोटल 15 लेक्चर्स हमारे हो जाएंगे, उसके बाद ही हमारे एग्जाम्स होंगे, उसके पहले दिस इज अवर 4th लेक्चर। ओके, तो और भी लेक्चर्स होंगे, उसके बाद एक बार 15 लेक्चर्स हो जाएंगे, तभी एग्जाम्स हो जाएगा आपका। ठीक है? सो या एवरीवन, आई विल ऑल, अभी हमारा जो लेक्चर होगा, यस 1-5, सो अभी हमारा जो लेक्चर होगा इट विल बी ऑन थर्सडे, so make sure everyone is present on Thursday. Today was Tuesday, so abhi make sure सब Thursday को present रहो।
ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर विल बी ऑन सैटरडे नेक्स्ट वीक। आई थिंक सम एल्स कोई और फैकल्टीज भी आपका लेक्चर लेने वाले हैं। ठीक है, तो आपको सबके लेक्चर्स रेगुलरली अटेंड करने हैं। ओके, सो वी आर डन विद द सेशन स्टूडेंट्स। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय। ऑलरेडी स्टूडेंट्स, मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे लिंक डाला हुआ है वीडियो का, जस्ट चेक इट ऑन योर ग्रुप। हीर जलूंद वाला, आई हैव ऑलरेडी पुट इट, यू कैन वॉच इट ओवर देयर। ऐसा है तो मैं आज फिर से अपलोड कर देती हूँ। ठीक है, ओके।